My dear brothers and sisters, today we are celebrating the 73rd Republic Day of our country. आज हम लोग देश का 73वां गणतंत्र दिवस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के रिपब्लिक डे का एक खास महत्व है क्योंकि आज हम लोग स्वाधीनता के 75वें 75th ईयर्स में प्रवेश कर रहे हैं। Today we are entering the 75th years of the independence. So importance of this Republic Day is some different from that of the others. आज के दिन हम देश के उन महान सपूतों को पहले याद करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके त्याग और बलिदान से हमारा देश 200 साल के गुलामी से आज़ाद हो सका। Today we salute, remember from her all those great sons of India who sacrificed their life and shed their blood for the cause of the nation, for the national integrity, security of the country. आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय लाल किले पर झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की शुरुआत किए। साथ साथ देश के सभी राज्यों में इसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज हम इस बात की व्याख्या करते हैं कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं। Why we celebrate the Republic Day on 26th January? What is its importance? What is the historical importance of this date? तो आज ही के दिन 1930 ईस्वी 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन में इसकी घोषणा की, पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस। The Indian National Congress declared in 1930 in Lahore session about the पूर्ण स्वराज। यह स्वाधीनता के रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तब से लेकर हम लोग हर वर्ष फेक इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। Since that time, 1930, 26 January, we are celebrating the fake Independence Day every year, which converted into real Independence Day after 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 के बाद यह असली स्वाधीनता दिवस में परिवर्तित हो गया। इस तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इसी दिन देश में संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी घोषणा की। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद ही एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हुई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी जो 3 महीने में संविधान का स्वरूप ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर उन्होंने पूरा कर दिया। A constitutional draft was prepared by the committee headed by Dr. Bhimrao Ambedkar, which completed this great work within 3 months. But due to some difficulty, due to the modality of the constitution, it took about 2.5 years, करीब 2.5 वर्षों के बाद इसको लागू किया।
हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी घोषणा की है 26 जनवरी 1950 को। उस घोषणा में उन्होंने कहा, द वास्ट लैंड ऑफ इंडिया, all the citizens, whether man or woman of the country, brought under the jurisdiction of, brought under the control of one union, one constitution. With this declaration and implementation, India became one of the sovereign, secular, democratic republic country. India was declared largest democratic country of the world. So 26th January has a great historical importance, and we celebrate Republic Day since that time on 26th January. Now the next is, what is Republic? Why we call it a Republic Day? Republic Day का अर्थ क्या है? जब राज सत्ता किसी एक व्यक्ति, किसी एक शासक, किसी एक राजा, किसी एक मोनार्क के हाथों से निकलकर आम जनता के हाथों में आ जाती है, कॉमन पीपुल, कॉमन मास के हाथों में आ जाता है, इसे हम रिपब्लिक कहते हैं। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टोटल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट शिफ्टेड into the hands of common people, common citizens, common mass of our country. Therefore, we call it as a Republic Day. Since then, we are celebrating Republic Day. Republic country में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर ही सरकार का गठन होता है। All government bodies are constituted from among the elected representatives by the common people through the process of voting and election. So this is the merits of Republic country. From municipality to President's house, all the government representatives are among the elected and selected by the common mass, by the common people of the country. So this is the republican form of the government. जनता के हाथ सारा सत्ता, सारा शक्ति जनता के हाथों में। तीसरा है मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मॉडल हमारे संविधान का सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यही मॉडल है। सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दिस इज द मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सेक्युलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। सेक्युलर मीन्स देश के सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म की रक्षा, उसको मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। एक दूसरे के धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करने वाला, कोई एक दूसरे के धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करे। हर धर्म के लोग अपने धर्म को पूरी आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करें और मनाएं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल इज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ऑल द पावर्स वेस्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, द कॉमन मास, कॉमन पीपल, कॉमन मैन। दिस इज डेमोक्रेसी। Democracy is for the people, of the people, and by the people. This is the model of our constitution. चौथा है how it differs from the others. हमारे देश का संविधान दूसरे देश के संविधानों से अलग कैसे है? हमारे देश का संविधान काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्यूम बहुत अधिक है। 395 धाराओं का यह संविधान है। 12 शेड्यूल इसमें है। पहले 8 शेड्यूल था, बाद में 12 शेड्यूल हुआ। 104 इसमें अमेंडमेंट्स हुए। इस प्रकार हमारे देश का संविधान
सबसे बड़ा संविधान है, विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। इसका बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है, वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार हमारे देश का संविधान दूसरे देशों के संविधान से अलग है। इस तरह हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, what is the meaning of republic, what is the model of constitution, and how our constitution differ from the constitution of the others. They all are related with the Republic Day of our country. इसका हमने एक संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।